ISG College. I welcome you all to the third session of 2-week online interdisciplinary refresher course, bilingual, on the topic The Quintessential Educator, Challenges and Opportunities in the Changing World. Today we have with us Professor Shyamakant Jha, Professor, Netaji Subhash University of Technology. Professor Jha received his BTech in Electrical Engineering from Bhagalpur College of Engineering, Bhagalpur, with distinction marks, and MTech degree in Control and Instrumentation from Delhi College of Engineering, respectively. He did his PhD from Delhi University. Currently, he is a professor in Instrumentation and Control Engineering Department at NSUT, New Delhi. His research interests include optimal control, robust control, bio-inspired control and electric drives, etc. He is a life member of Indian Society of Technical Education, ISTE, and Institution of Engineers, India. He is a fellow member of IETE. He has contributed as an expert for preparation of dictionary of electrical engineering organized by Commission for Scientific and Technical Terminology, Ministry of HRD, Department of Higher Education, Government of India. He has chaired many sessions in international conferences. He has delivered many keynote lectures and invited talks in international conferences and faculty development programs. He is empaneled by UPSC as an expert for confidential works and meetings. Sir, we are honored to have you with us. I now welcome Professor Jha to speak on the topic indispensability of introducing quintessential essence of universal human values in higher education. I repeat, I request now Professor Jha sir to speak on the topic indispensability of introducing quintessential essence of universal human values in higher education. Sir, please. Okay. Thank you very much. So, Honorable Principal, ARSD College, Professor Gyantosh Kumar Jha ji, Honorable Professor SP Agrawal, Principal, Ramanujam College, Dr. Vinita Tuli, Convener, Dr. Anjali Gupta, Co-Convener, Dr. Rajiv Nayan, Coordinator, TLC, Ramanujan College, and other organizing committee members. I thank all of you from bottom of my heart for inviting me in this August refresher course on the role of teachers in the world amidst different potential challenges. My special thanks are also to the audience who keep tremendous desire to hear and embody all the quintessential points of this course for their future purposes. So, as I have been introduced right now, my background is engineering, electrical engineering, but I am fascinated from within towards all these spiritual values of the world, all these universal human values of the world. And why I am so much fascinated and enchanted by all these things, that will become very clear when I will deliver the complete lectures. In fact, while we take class or when we enter into the first class, generally, my question to all the students always are, what is their aims in life? Because aims in life for every human being should be very much clear from very beginning. Because Swami Vivekananda said that most of the person die without being born. बहुत सारे आदमी बिना जन्म लिए ही मर जाते हैं. एक ही सेंटेंस में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया. And he used to say that the death of birth of a person should be counted from that time onward when he or she came to know about the real purpose of their lives. So when we ask this question to the students present in my class, what is their real purpose in life? Then many of them say that their main aim of life is to acquire peace and happiness. Peace and happiness, this is, I think, true answer of the question which every one of us want. Now, what are the ways by which
we can get peace and happiness in our lives, and for that matter, peace and happiness in the world. Because peace and happiness in the world is very much depending upon the peace and happiness of individual human being. So if we want to see what is peace and happiness and how do we get real peace and happiness, then we remember one important Sanskrit verse, Sanskrit slok, which says that, vidya dadati viryam vinyat yati patratam patratva dhanmapnoti dhanat dharma tata sukham. So last word of this sloka is sukha, that is peace and happiness. So journey of peace and happiness in this sloka starts right from knowledge. Knowledge begets humility, humility begets eligibility, eligibility begets money, money begets dharma, dharma begets real peace and happiness. Now, what is dharma? Many of us don't understand the true implication of dharma. They are translating dharma with, XYZ religion of the world. These XYZ religion of the world are not dharma. They are religion. So when we say dharma, it has wide implications. And many words which has been written in original language, they don't have real translation in this world. So dharma is nothing but it is righteousness or righteous work. Whatever righteous work we are doing, that is dharma. So real peace and happiness lies in knowledge and dharma. Dharma we will try to focus upon still more. So as far as Gyan is concerned, Bhagavad Gita says that nahi jnanain sadrisam pavitram vidyate. There is nothing as sacred as knowledge in this world. ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस दुनिया में दूसरा कुछ भी नहीं है. एक जगह और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयाम द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञः परं तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. There are different form of donations, there are different form of sacrifice which we do in our personal life, but the greatest sacrifice, greatest donation is that of the knowledge. And in this context, Rabindranath Tagore also said very important thing, that where the knowledge is free. So knowledge, I think that should be free. And when knowledge will be free, only people will be truly enlightened. So in my view, whenever any conference is organized, its registration charge should be minimal. This is my advice to all the organizer of the conference, because world is suffering from many problems, and unless and until we impart free knowledge to the world, we will be at stake, our life will be at stake. So this is my advice, but we will see why this knowledge is so beautiful and why it is source of peace and happiness. We all know about great scientist Newton. Newton enjoyed throughout his life by working on knowledge. He had multifarious knowledge in different directions. He worked in physics, he worked in mathematics, different branches of physics, different branches of mathematics. And most valuable contributions which Newton gave to the world, that is in the field of calculus. Avkalan Shastra, Hindi mein hum log kehte hain. So main credit of the discovery of calculus goes to Newton and Leibniz partially. So there is one very famous historical problem that is known as Brachistochrone problem, which was first of all envisaged by Bernoulli. In fact, this problem is like this. There are 2 points in a vertical plane, and Bernoulli first of all thought that what should be the shape of the wire joining these 2 points A and B, so that if a bead is allowed to move from A to B under gravity, it should reach in minimum time. So at that point of time, Bernoulli could not solve this problem. He sent out later to all the contemporary mathematicians as a challenge that, any person who will solve this problem
he will congratulate them. So just after one day of posting his letter, he got anonymous reply from one great mathematician, and he was Newton. So just by seeing that reply, Bernoulli exclaimed that even though you have not mentioned your name, but it does not take too much time to recognize the lions by its paws. So this was the exclamatory words which came out all of a sudden from the mouth of Bernoulli. So Newton had a great contributions in mathematics, and he enjoyed from mathematical knowledge, physical knowledge very much. So in the same way, I also derive my pleasure from extracting knowledge from different sources. Like, you will be surprised to know that I keep on decoding spiritual implications, universal human values from all the scientific topics, all the technical topics, all the modern science and technologies. Like, there is one paper of mine published in Journal of Engineering Education Transformation, whose title is Transforming Engineering Education, Exploiting Inveterate Symbiosis Between Science and Spirituality. So in that paper, what I have tried to extract, that is, I have decoded spirituality in science. Like, we have taken DC motor and DC generator, and many of us may be knowing about the basic philosophy of DC motor and DC generator. That is also known as dynamo. When we talk of DC motor, we are supplying voltage to the machine, and this current electrical energy gets converted to mechanical energy. So when we apply EMF, electromotive force, back EMF is produced. So if there will be no back EMF, no energy conversion from electrical to mechanical would take place. So I have compared this back EMF with the struggle which a human being is making. Like, also in our practical life, we are applying efforts to accomplish any task. Whenever we apply effort, we have to face a lot of hardships, lot of ordeals, lot of eventualities in the lives. So these hardships and eventualities and adversities, whatever we are having, that we analogically compare with the back EMF. So for energy conversion, just like science and technology, even in practical life, I say, if it is not adversity, then our life is not successful. So adversity is very important thing. Those of us who have not faced adversity, their life is really not successful. So we come across many great personalities of the world. We treat them, we regard them, we term them as great because they have faced some adversity in their lives. Those who have not faced any adversity, those who have been born with a silver spoon in their lives, those peoples may not be supposed to be the great persons of the world. So that is why adversity is better than prosperity. We used to write paragraph on this when we were in matriculations or before that. So my topic, indispensability of introducing quintessential essence of universal human values in higher education. This is very important thing. What we are observing nowadays, that many peoples who are well qualified person, well knowledgeable persons, who are having good scientific knowledge, technical knowledge, but because of the fact that they are devoid of universal human values, they are devoid of love and compassion, they are devoid of spiritual energy. That is why they are committing blunder in the societies. So any knowledgeable person devoid of spirituality, that is more useless than any foolish person or than any illiterate person. So why I am saying this? Because I can express it in this way, that science minus spirituality or science minus universal human values, that is equal to destruction of the world. Science plus spirituality,
or science plus universal human values is construction or creation of the world. Like we see what are the main inventions of science and technologies. So there are useful inventions and there are deadliest inventions also. When we talk of useful inventions, there are so many useful inventions which is very useful for human being. But when we talk of deadliest inventions, they are not useful for human being. If they are used against humanity, then whole world will be at stake. Whole world may be destroyed. So generally, I give analogy of science with the knife or chaku. Suppose if a knife goes in the hand of a doctor, it saves the life of a patient. But if the same knife goes in the hand of terrorist, it kills the human being. Knife is same, but it does two kind of work. Once when it goes in the hand of the doctor, it saves the precious life of the patient. But when it goes in the hand of a terrorist, it kills the human being. So this knife, that is equivalent to science and technology. So in the same way, if inventions of all these science and technologies will go in the hand of terrorist, it will destroy the humanities from the world. But if it will go in the hand of scientists and doctors, it will save the world from destruction, and world will be truly livable place. World will be heaven and paradise. Now, when we talk of universal value system or universal human values, which must be integral part of higher education, why do we say? I am not saying, but this has been repeated many times by former Honorable President of India, APJ Abdul Kalam. Whenever he used to deliver any lectures in any conference or in any institutions, he always quoted many spiritual messages to the entire world. Many of us know about him. So first of all, we should understand what is the implication of universal human values. We call it many times as spirituality also. Second name of spirituality is universal human values. And most ironical thing is that many of us mistakes universal human values or spirituality with religion. So my brothers and sisters, you must remember that religion does not represent the spirituality. Religion does have nothing to do with universal value system. Rather, religion is the greatest culprit for preserving, for percolating the message of universal value system to the entire world. So UHV, it is something which transcends beyond all these parochial aspects of the lives, like religion, region, nation. So it goes beyond religion, region, and national boundaries. Universal value system, which is true in India or applicable in India, that will be equally applicable in United States of America also. That is why it transcends any boundary. So this is very important thing, and quintessential essence of universal human values is empathy. Many of us know about sympathy. Sympathy reflects ego. But when we talk of empathy, in Hindi we call empathy as समानुभूति. समान रूप की अनुभूति अगर हम दूसरे में करते हैं, अपने जैसा ही अनुभूति अगर हम दूसरे में करते हैं तो वो समानुभूति कहलाता है. उसी को हम लोग अंग्रेजी में एम्पैथी कहते हैं. अगर हम संस्कृत के आधार पर इसको समझना चाहें तो आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः. अपने समान जो दुनिया को देखता हो वही सही रूप में ज्ञानी है और वही सही रूप में एम्पैथेटिक पर्सन है. सो एम्पैथी,
I think it is in the root of universal value system. और मैं तो यहां तक कहता हूं कि एक शब्द एम्पैथी पूरे दुनिया के सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है. मैंने बहुत सारी समस्याओं के बारे में सोचा, and when we applied the principle of empathy, I found that we can get the solution of all the problems of the world by applying the science of empathy. So empathy is very beautiful word of dictionary. We must understand true implication of empathy. And if you want to understand true implication of empathy, then we have to remember Gandhi's talisman given in every 10+2 NCERT books. What is the Gandhi's talisman? He says that whenever you want to contemplate any step in your life, try to remember the face of the poorest of the poor persons whomsoever you have seen, and see whether the step you are going to contemplate is going to do some benefit to that poorest of the poor person or not. If your answer is no, stop. If your answer is yes, then go ahead. So this reflects the true implication of empathy. Even in Bhagavad Gita, Krishna says to Arjun that yadi yam navartayam jatu karmanya tandritah mam vartamanu vartante manushya parth sarvasah. Krishna gives a better example of leadership to Arjun. The implication of that shloka is, Krishna says, Arjun, I have to tread our path very cautiously and circumspectly, because if ever anything goes wrong by me, whole society will be chaotic. Lawlessness and anarchic situation will prevail in the society, because from all around, each and every human being is following suit to whatever I am doing. So Krishna gives some allusion towards harmony between words and deeds. Par upadesh sakal bahutere je achrahi se nar na ghaneri. There is no dearth of people which gives a lot of preaching, but when it comes to practice practically by their own self, they are devoid of all this practicality and pragmatical approach in their life. So those persons are really devoid of empathy. And I have also thought about love and compassion as a form of energy, because energy, how do we define energy? In fact, ability of doing work is known as energy. So in the same way, we have seen when we think about the life sketches of many great persons like Guru Nanak, Guru Gobind Singh, Gautam Buddha, Swami Vivekananda, APJ Abdul Kalam, etc. We find that love and compassion in their lives worked as a great deal of energy for them, because love and compassion also increases the level of doing work by a person. If work's ability to do work for the society increases with the help of love and compassion, so we can say that love and compassion is also a great form of energy. So this is universal or quintessential essence of universal value system, love and compassion. Even we have heard Kabir says that पोथी परि परि जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो. So this love and compassion, if anybody is devoid of love and compassion, so they can never be respected in the society. They may never be a great person in the society, howsoever they have reached to any coveted positions, or howsoever they have earned wealth and money that is useless for the entire world. So when we see the world problem, generally many times it happens that even though we want to lead a peaceful life, but most of the times leading a peaceful life depends upon external circumstances also. Like if you want to lead a peaceful life, but in the surrounding
some bad incidents is going to take place, so your life will be disturbed. So what we observe that there are many critical problem of the world, which is real culprit for peace and happiness in the world. So mainly we come across two kinds of problems, like environmental problem and problem of terrorism. When we talk of environmental problems, and we will see that how environmental problems may also be solved with the formula of science of empathy by following universal human values. Many times we have seen a lot of deliberations is going on in the world to minimize greenhouse gas emissions, which in short is known as GHGs. And we have observed that these greenhouse gas emissions, which causes a lot of carbon footprints to be there in the environment, created a lot of ecological problem. World over, leaders are trying to minimize this carbon footprints, minimizing the greenhouse gas emissions. And for that, different protocols came into picture, like Kyoto Protocol, Paris Agreements, Doha Protocol, different protocol came into picture. So first of all, Kyoto Protocol was envisaged, which took place in Kyoto. That is why it is known as Kyoto Protocol. And you will be surprised to know that United States of America alone, which was producing 30% of the footprints of the 30% of the carbon footprints in the entire world, they did not participate in this protocol. So first of all, 1905 to 1912, first commitment period was decided to be 2005 to 2012. But it was America alone which came out from this protocol or from this, agreement, because America thought that if they will participate in this protocol, then they would have to minimize greenhouse gas emissions, and their status in the world will be minimized, and people in the world will start ignoring them. So due to which America came out from this agreement. So again, what we are observing, that there is dearth of harmony between words and deeds of America. America is unipolar world. America is most powerful country of the world. That is why world is known as unipolar world. So in order to see herself at the top, America did not try to minimize greenhouse gas emissions, and that is why he always deceived any kind of protocol which took place in the world. So why America did this? Because of lack of empathy. If America had true virtues in them, they must have participated. And you will be surprised to know that when we talk of per capita energy consumptions, so America's per capita energy consumption is 10 times that of India. China is on the world average. So even though India's per capita energy consumption is very low, but India has wholeheartedly participated in all the protocols, in all the world agreements to reduce the greenhouse gas emissions. So what we see, that in order to minimize the greenhouse gas emissions, we can use the quintessential essence of universal human values present in Indological philosophies, Indic philosophies. Like in Bhagavad Gita, there is very important verses that it says, Patrang puspang palang toyang yome bhaktya priyachati tadhang bhaktu pahitam asnami priyatatmana. Krishna says to Arjun that any devotees who is offering me leaves, fruits, waters, etc., I wholeheartedly consume all those things. So भगवान ऐसा चीज बोल रहे हैं कि हम लोग पत्र, पुष्प, फल, पानी जो भी श्रद्धा पूर्वक हमारे भक्तगण देते हैं, मैं उसको प्रेम पूर्वक खाता हूं. अब इस एक सेंटेंस में ही
This one sentence speaks volumes about how we have a great love for environment, how we have a great love ingrained in our culture about flora and fauna of this world. It is only India which always loved flora and fauna, which always loved the ecological balance. And I have experienced deeply, I have studied deeply, and if we apply all those universal formulas ingrained, embedded in our rich cultural heritage, then I think there would have been no any environmental problem in the world. So other verses in Upanishad, we all know about Upanishad. There are numerous volumes of Upanishads. One important Upanishad says Ishopanishad. So first mantras of Ishopanishad is very important. That is Isha Vasyam Idam Sarvam Yat Kincha Jagatyam Jagat Ten Tyakten Bhunjitha Ma Kasyasya Dhanam. So what is its implication? This is very important. As we know that God has created entire creatures of the world. God has created entire flora and fauna of the world. And because God has created entire creatures, entire flora and fauna, it means God wants us to use anything from this world very sparingly, because whatever we use, there must be something left for the entire flora and fauna to utilize this eternal source of energy. But what human being is doing, they are trying to exploit, they are trying to harness more than what is a portion for them by the God. So this is a strange irony that we are loving the God, but we are not loving the creation of the God. So this is paradoxical and this is hypocritical. So many of us are hypocrite when we see that we are devotee of God, but when we don't love the creation of the God, it means we are paradoxical persons. We are hypothetical and we are hypocritical person. So many people of this world are hypocrite. They don't have any harmony between words and deeds. So how it is possible that a person who is loving God will not be loving the creation of the God? So applying this mantra of Upanishad, I think there will be great preservation of environment and climates. So these verses are foundations of universal human values prevalent in the world. That is why peoples world over, especially in Western countries, they have started studying Sanskrit. They have started applying Sanskrit knowledge in different walks of life. They are working on making the Sanskrit language as a language of a speech, as a spoken language in their countries, like California. Their government is trying their level best to incorporate Sanskrit so that their citizens, they may be well acquainted with universal human values. And you will be surprised to know that I have read it in newspaper, I think 3 or 4 years ago in Times of India, that India is the only country, where if you want to know its original language, which was Sanskrit, then there is no scholar. If you want to understand true knowledge of Sanskrit, you have to go to German, because German is investing too much money for research on Sanskrit language. And even NASA has approved for Sanskrit as the most important language for computer. So these are the virtues of Sanskrit language. And other very important, very common sentence which we generally make is that Vasudhaiva Kutumbakam. Whole world is like our family. When we have this kind of feeling,
we don't try to create disturbance for other persons, for other creatures. And this is the essence of universal value system. Say, when we say all these things, then there is also very important thing, very important slokas of Bhagavad Gita. Karmanyevadikaraste ma phales kudachana ma karma phal heturhuma te sango vastu karmani. The first sentence, most of us know that we have every right to perform our duty, but not to think about results. The second sentence, that is also even more important than the first one, which says that let not the attachment be the cause of your inaction. ये जो attachment है, ये जो माया है, मोह है, ममत्व है, ये कभी कभी हम लोगों को गलत करने पर मजबूर कर देता है. जैसे हम दूसरी समस्या जो देख रहे थे, टेररिज्म की समस्या, यहां भी वही होता है कि कभी कभी हम लोग अपने रिलीजन को सबसे इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं और दूसरे के रिलीजन को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं. ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है कि we are attached to our religion. So attachment is the greatest culprit for destroying the world peace from the world. We have not to be attached. And when we talk of attachment, तो मुझे एक चीज याद आ गई कि once my father came to Delhi, और वो बराबर अक्सर आया करते थे मेरे पास रहने के लिए. तो एक बार वो आए और एक संस्कृत का श्लोका बताए कि मातु पिता गुरु के वाणी करे बिना विचारे जो शुभ जाने. माता पिता और गुरु जो भी चीज बोले उसे शुभ जानकर कर लेनी चाहिए. और आप लोगों में से बहुत लोग ऐसा ही सोचेंगे कि हाँ, ये तो उन्होंने ठीक बोला था कि माता पिता और गुरु जो भी चीज कहें उसे अच्छा समझकर कर लेनी चाहिए. मेरे ख्याल से 99% ऑफ द ऑडियंस राइट नाउ विल एग्री विद दिस. 1% ही विरोध करेंगे. लेकिन मैंने उनको विरोध किया इस चीज का कि नहीं, आप ये चीज गलत बोल रहे हैं. माता पिता और गुरु सही करें, सही एडवाइस दें, तभी उसको मानना चाहिए. वो गड़बड़ एडवाइस भी दे सकते हैं. मैंने उनको एग्जाम्पल दिया. मेरे आस पड़ोस में एक सज्जन तो नहीं कह सकते हैं, एक संस्कृत के विद्वान रहते थे. कहने के लिए संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन उनका स्वभाव जो था वो ठीक नहीं था. और उनके स्वभाव के कारण उनका एक शिष्य जो है बहुत बड़ा बदमाश बन गया, क्योंकि वो अपने गुरु का बात बराबर मानता था और गुरु का स्वभाव वैसा था, तो शिष्य भी वैसा ही बन गया. He became dreaded criminal. बाबूजी उस एग्जाम्पल को जानते थे. When I cited this example before him, he got what I wanted to tell him. तब उन्होंने दूसरा एक श्लोक सुनाया, दूसरा एक कविता सुनाया हमको. वो इस प्रकार था कि तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बनि तन्नी भय मुद मंगलकारी. इसका अर्थ इस तरह से है कि जैसे राजा भरत ने अपनी मां का परित्याग कर दिया था, विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया था, प्रहलाद ने अपने राक्षस पिता का परित्याग कर दिया था, और राजा बलि ने अपने गुरु का बात नहीं माना था. हम बोले हाँ, ये जो आपने बताया है ये सही है. क्योंकि हम लोग जब अटैच्ड हो जाते हैं बिना सोचे समझे, because power of discrimination is very important thing. Many of us don't have that sort of power of discrimination. सही और गलत का के बीच अंतर करने को ही हम लोग पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. तो जिसे ये विवेक नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो उसके लिए हमेशा ये बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है. इसीलिए माता पिता और गुरु का बात भी तभी हम लोग मानेंगे जब वो सही बताएंगे. वैसे ही रिलीजियन में क्या लिखा हुआ है उस चीज को तभी मानेंगे जब वो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात को सत्यापित करता है या फॉलो करता है, या साइंस ऑफ एम्पैथी को मानता है. एम्पैथी क्या कहता है कि जो चीज हमारे लिए अच्छा है
वही दूसरों के लिए भी अच्छा होनी चाहिए। दूसरे के दिल में जाकर सोचने का जो काम होता है यही एम्पैथी है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। लेकिन आजकल जो टेररिज्म की घटनाएं हो रही हैं पूरे विश्व में, वो इसीलिए हो रही है कि रिलीजियन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू सिस्टम का विनाश हो गया है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड that science minus spirituality, that will be destruction. Science plus spirituality, that will be construction. So that is very important thing. And most of the time we make analogy between computer and human also. As we know that if a computer is there, and if you want a computer to work properly, then three fundamental component of computer, they must be in healthy condition. That is hardware, software, and power. If any of these three components is absent, computer will not be able to work properly. And out of all these three things, one is very important thing, that is software of the computer, because it is software which is nothing but programming which is fed to the computer to accomplish a particular task. In the same way, just like computer, human being is also having three fundamental components: body, mind, and soul. Body of the human being, that is analogous to hardware of the computer. Mind of the human being is analogous to the software of the computer, and soul, that is atma of human being, is analogous to power or energy which is supplied to the computer. So human being will also not able to work properly if any of three faculties is absent. And out of all these three faculties, mind is very important thing. So just like computer, if we feed virus in place of software, so virus is nothing but it is some coding which is destructive coding which destroys the operation of the computer. In the same way, in human being also, if our mind is flooded with wrong philosophies, wrong things, then I will not be able to work properly. We will not be able to work properly. We will work destructively. So that is why all the three things, health, that should also be strong. Mind should also be strong. We should try not to incorporate, not to allow any bad thing to enter into our mind, any destructive school of thoughts to enter into our minds. So once our mind is polluted, then world pollution is bound to take place. So if you want to remove pollution from this world, then we have to stop polluting our mind. This is very important thing. And there is one important verse of Rig Veda which says that Ano Bhadrah Kratavo Yantu Ishvatah. Let the noble thought come from different corners of the world. This is also reflecting some sort of empathetic feeling. जहां से भी अच्छी चीजों का प्रादुर्भाव हो रहा है, जहां से भी अच्छी चीजें हमें मिल रही हैं, हमें रोकना नहीं चाहिए। अच्छी चीजों को जहां से भी मिल रहा है हमें लेनी चाहिए। हमारे बाबूजी बराबर बोलते थे कि परे अपावन ठोर पे कंचन तजे न कोई, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, परे अपावन ठोर पे कंचन तजे न कोई। जैसे गंदा जगह पर भी अगर सोने का टुकड़ा रखा हुआ रहे तो आदमी उसको उठाकर धो के रख लेता है, उसी ढंग से ज्ञान अगर कहीं भी हो तो ज्ञान लेनी चाहिए। पहले भी मैंने बताया कि रियल पीस एंड हैप्पीनेस का जो सही रूट्स है वो ज्ञान ही होता है, क्योंकि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दुनिया में और कुछ भी नहीं है। और जब हम विश्व की समस्याओं को देखते हैं तो मुझे लगता है कि जिसे विवेकानंद भी बार बार मेंशन करते थे कि यूथ इज ए फ्लीटिंग फिनोमिनन। ये जो युवापन हमारे जिंदगी में आता है ये थोड़े समय के लिए आता है। इफ वी वेस्ट आवर vigor of the youth, then we will be wasting the entire life, because
युवापन जो होता है, this is transient phenomenon. This is occurring only for 10 to 20 years. And whatever we do, whatever we inculcate in our formative periods, impressionable periods, that continues to remain in our lives forever. But what we are observing, that the modern youths are suffering from a lot of stress and strain in their lives. आजकल युवा परेशान हो रहा है, विश्व का युवा मार्गहीन हो रहा है, डायरेक्शनलेस हो रहा है, और युवा अगर डायरेक्शनलेस हो जाए तो विश्व में तबाही छा सकता है। युवा को अगर डायरेक्शन मिल जाए तो विश्व में सृजन हो सकता है, विश्व आगे बढ़ सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हम छात्र हैं, आप लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है। When you connect any electrical wire with a battery, then current starts flowing if circuit is closed. Meaning thereby we are applying, when we are applying, we are connecting electrical wire with battery, then we are supplying EMF to the systems. And these electromotive force, what does it do? It motivates the electron to flow inside a conductor. Electromotive force, that is why its name is electromotive force. It motivates or it forces the electron to flow inside the conductor. In the same way, if we put the youth in inspirational surroundings, in conducive environment, youth will gain energy. Youth will be having some good direction. Otherwise, youth will be in the wrong directions. And once youth will be in the wrong directions, they may create havoc for the world. So how to deal with this stress which is there inside the youth of the world? तो मेरा इसमें सलाह है कि भगवद गीता में एक श्लोक है इसके ऊपर भी कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि नात्येत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निनिवावृता, कि हर एक यूथ को चाहिए कि सहजता से जो काम उसे अच्छा लगता है वो काम करना चाहिए। जैसे किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, नेचुरल उसका इंस्टिंक्ट जो है मैथमेटिक्स में है, उसे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। किसी को फिजिक्स अच्छा लगता है तो उसको फिजिक्स पढ़ना चाहिए, किसी को केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो उसको केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, किसी को मेडिकल साइंस अच्छा लगता है तो मेडिकल पढ़ना चाहिए, किसी को कानून वाला फील्ड अच्छा लगता है तो कानून का शास्त्र पढ़ना चाहिए। ऐसे ही, और पेरेंट्स को उसके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सहजम कर्म कौन्तेय, लॉर्ड कृष्णा से सहजता से जो भी चीज करने में अच्छा लगता है उसको परस्यू करने के ऊपर सफलता आसानी से मिल जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक जगह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विग्रह परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं से यह परधर्मो भयावह। यहाँ पर भी धर्म कहने का मतलब वो XYZ रिलीजियन नहीं है। धर्म करने का मतलब है कि नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। व्हेन ए चाइल्ड sees the first light in the world, natural tendencies are embedded in them then and there. Every human being is having different intrinsic philosophies, intrinsic capabilities. कल 23rd को मैं आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जो भूतपूर्व वाइस चांसलर रह चुके हैं उनका लेक्चर सुन रहा था। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कुछ कि है ना हर एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। मैं थोड़ा वहां डिसएग्री करता हूं कि हर एक व्यक्ति, each and every human being are differently wired. When God has sent us, they have sent us with certain constants in our lives, certain limitations in our lives also. जैसे चाह कर भी हम आइंस्टीन नहीं बन सकते हैं अगर भगवान ने हमें वैसा कैपेबिलिटी देकर नहीं भेजा है।
वैसा वायरिंग करके नहीं भेजा है। चाह कर भी हम न्यूटन नहीं बन सकते हैं। इसीलिए कभी कभी हम प्रयास तो करें, प्रयास करने के बाद इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बिकॉज fruits is in the hand of the God. So it is said that the scientists like Einstein, scientists like Newton takes born after each 1000 years. अगर ऐसा होता कि सभी साइंटिस्ट बन सकते थे, सभी आइंस्टीन बन सकते थे, सभी न्यूटन बन सकते थे, तो ऐसा सेंटेंस नहीं बोला जाता। लेकिन फिर भी most of the time we are not able to realize what we could have otherwise realized. इसलिए हम जितना रियलाइज कर सकते हैं उतना रियलाइज करने का प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद हमें कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन इज द रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस बिल्ड अप इन द यूथ ऑफ इंडिया। We should avoid comparison because, as I have told you, each and every individuals are differently wired. They have different potentiality, different capabilities, different abilities to work, different natural tendencies, natural capacity to do the work. So that is why we have not to compare. We are unique human being. जैसे गांधी जी नेहरू जी की तरह बहुत अच्छे लॉयर नहीं बन सके, लेकिन उनका पोटेंशियलिटी था, ही बिकेम ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। हमारे में भी, मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं कि जैसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 फेज पावर की जब बात करते हैं, तो 3 फेज पावर व्हेन वी एड अप एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट। इन द सेम वे फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, मान लीजिए कि कोई अगर पढ़ाई में अव्वल नहीं आ रहा है, हो सकता है वो एक अच्छा मानव होगा, और बल्कि उससे समाज में ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन हो जाता है। हिस्ट्री इज रिप्लेट विथ मेनी एग्जांपल्स वेयर स्टूडेंट्स डिड नॉट परफॉर्म वेल in their educational system, but they performed well in social systems. They became a great social activist. They did many beautiful things for the humanities, and their name became more famous than those who were scoring good marks in their examinations. So हमारे में जो latent genius है, विवेकानंद हमेशा कहते थे, there is latent genius in every child. It is the function of true educational system to bring them into light. और वो हमेशा बोला करते थे कि weak you think weaker you will be, strong you think stronger you will be, whatever you think that you will be. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था उनका। अगर कमजोर सोचोगे अपने आप को, तो कमजोर होते जाओगे और कमजोर हो जाओगे। अगर तुम अपने को मजबूत सोचोगे तो और मजबूत हो जाओगे। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाओगे। और स्ट्रेस बिल्डअप का कारण एक खराब सोच भी होता है। भगवत गीता में सोच के ऊपर भी बड़ा बढ़िया एक श्लोक है कि क्यों कहीं पर स्ट्रेस डेवलप करता है, क्यों किसी बच्चे के मन में गुस्सा आता है, एंगर, तो एंगर कंट्रोल कैसे करें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामः क्रोधा विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् तस्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बड़ा बढ़िया ये श्लोक है कि हम जैसा सोचते हैं, जिस विषय के बारे में सोचते हैं, उससे हमारी आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होने से अगर वो चीज नहीं मिलता है तो फिर उसमें क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जब उत्पन्न होता है तो वी लूज पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और व्यक्ति किसी हद तक नीचे गिर सकता है। तो इसके बाद एक आध जो मैंने बनाया है उसके बाद मैं इसको समाप्त करूंगा, और आधा घंटा कुछ क्वेश्चनियर लेंगे, क्योंकि बच्चे का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक चीज हम हमेशा बोलते हैं सभी को कि दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो अपना गम मैं भूल गया। जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो तो ये बात को हमेशा याद रखें कि एक व्यक्ति गरीब था और बराबर वो शिकायत करते रहता था भगवान से। तो भगवान अपीयर हो गए उसके सामने में, बोला कि तुम अपना 2 आंख दे दो, हम 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं। बोला क्या बोल रहे हैं आप? बोला तो जो अंधा व्यक्ति है उससे तो तुम अच्छा हो ना, तब तुम स्वस्थ हो, इसका मतलब 2 आंख तुम्हारे पास है, तो दैट इज वर्थ 2 करोड़ रुपीज। तो वैसे ही हम अगर स्वस्थ हैं, हेल्थ इज वेल्थ, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेशन तो कभी होना ही नहीं चाहिए।
उसी ढंग से किसी को अगर ऐसा हो, घमंड हो जाए, अपने ऊपर ईगो प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए भी मैं बनाया हूं ये इसी दोहा से कि दुनिया में कितने ज्ञानी हैं, दुनिया में कितने ज्ञानी हैं, अपना ज्ञान कितना कम है। दुनिया में कितने ज्ञानी हैं, अपना ज्ञान कितना कम है। औरों का ज्ञान देखा तो अपना गम में भूल गया, अपना ज्ञान में भूल गया। इसलिए कभी किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत ज्ञानी हैं, और कभी कभी ऐसा हो कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो अज्ञानी हैं, तो उस समय में याद करें कि दुनिया में कितनी अज्ञानता है, अपनी अज्ञानता कितना कम है। औरों की अज्ञानता देखा तो अपनी अज्ञानता में भूल गया। उसी ढंग से अगर बहुत गरीब होने का भी हो तो भी हम कह सकते हैं, है ना, ये सब चीज याद कर सकते हैं, तो हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूर हो जाएगा। और एक बड़ा बढ़िया मंत्र है कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत रहना। ये चीज हमेशा हम लोगों को याद रखनी चाहिए। तो आज मेरा जो है 1 घंटा के आसपास होने जा रहा है। मैं तो एक्चुअली मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है। विज्ञान के साथ साथ मैं मानता हूं कि आध्यात्म का अभाव जो है विश्व को बर्बाद कर रहा है, और जो इस बर्बादी को नहीं देख रहा है, तो मेरे ख्याल से वो उसके लिए मेरा एक सुझाव है। दुनिया बर्बाद हो रहा है, आपके आसपास दहशतगर्द फैल रहा है। अगर आप अभी भी सचेत नहीं होंगे तो दुनिया में मार काट के सिवा कुछ नहीं होगा, और इसके लिए सभी को पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। और इसमें रामधारी सिंह दिनकर इसीलिए कहते हैं कि समय लिखेगा तटस्थों का भी इतिहास। इसलिए जो तटस्थ हैं, वो जो सोच रहे हैं कि हमको क्या मतलब, ऐसा नहीं करना है। हम जैसा जिस फील्ड में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वैसा देने का प्रयास करें। और मुझे लगता है कि हमने जो बताया उससे आप लोगों को कुछ एक नया चीज मिला होगा, और इसको प्रैक्टिकल में लाना है। वी हैव टू अप्लाई इट इन प्रैग्मेटिकल अप्रोच। वी हैव टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, एंड फॉर दैट these universal human values that must be embodied in ourselves, and that must be part of curriculum. Especially these kind of universal value system, universal human values or spiritual educations must be incorporated in the higher educations. That I wanted to let you know the implications of the quintessential essence of these universal human values, or this spiritual energy. If we are devoid of this spiritual energy, then we can become destructive to the world. If we are having this spiritual energy or universal human values in us, then we can be useful to the world. और इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विराम कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आधा घंटा में हम उस प्रश्न को लेंगे और उसका यथोचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, पहले हम देख लें एक बार सर। जी जी जी, चैट में है क्या? हाँ सर, मैं रीड आउट करता रहूंगा सर आपके असिस्टेंट के थ्रू सर। जी जी। सबसे पहले तो एक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है सर कि बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया है आपने। सालावकर उमाकांत सितारा जी ने आपको ये कॉम्प्लीमेंट दिया है। फिर एक क्वेश्चन है, एक रिक्वेस्ट है सर, ये डॉक्टर गोपाल जी की तरफ से है। सर ये मेरी जिज्ञासा है कि युवाओं को आत्मविश्वास की वृद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए? जी जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरा लास्ट वाला जो 5 मिनट था उसी के ऊपर था कि यूथ इज अ फ्लीटिंग फिनोमिनन। विवेकानंद हमेशा कहते थे युवा थोड़े समय के लिए आता है। जैसे हम लोग छाता यूज करते थे, तो छाता में कच्ची छड़ी का छाता बनाया। जैसे कच्ची छड़ी क्या होता है कि झुक जाता है जब वो कच्चा होता है, वैसे ही सभी युवा जो हैं दे आर पासिंग थ्रू इम्प्रेशनेबल पीरियड ऑफ योर लाइफ, इसलिए इसको इम्प्रेशनेबल पीरियड कहते हैं। तो इस समय में जैसा मैंने बताया कि हर एक युवक को अपने मन को टटोलना चाहिए, मन के अंदर जाना चाहिए, क्या अच्छा लगता है उसको। और आज जो मैंने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात की, इम्पैथी, इम्पैथी मतलब होता है समानुभूति। ईर्ष्या द्वेष ना करें, तुलना ना करें, अपने लिमिटेशंस को देखें, अपने कैपेबिलिटीज को देखें, हम क्या कर सकते हैं, हमारा रुझान क्या है,
हमारा लाइकिंग क्या है, हमारा प्रेडिलेक्शन क्या है, इंटरेस्ट क्या है। सो अपने रुचि को जानने का प्रयास करें। जैसे मैं बताता हूं, हम लोग बचपन में बहुत साधारण परिवार से थे, तो पढ़ने लिखने का माहौल गांव में बिल्कुल नहीं था। लेकिन किसी ने, जैसे हमारे भाई साहब थे, तो एक बार गणित का थोड़ा सा उन्होंने स्वाद चखा दिया था। तो गणित में मुझे बड़ा आनंद आता था। बैठ जाते थे सुबह में, और मेंस्ट्रुएशन एक टॉपिक होता था। जब तक मैं 20-25 मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम नहीं बनाता था, तब तक मुझे खाने का मन ही नहीं करता था। और ऐसे भी एक साइंटिस्ट पॉइंकेयर हुए हैं, वो हमेशा बोला करते थे कि वी स्टडी नेचर बिकॉज नेचर इज इंटरेस्टिंग। हैड नेचर नॉट बीन इंटरेस्टिंग, व्हाई वुड हैव आई स्टडीड इट। हम लोग प्रकृति का अध्ययन करते हैं, क्योंकि फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर इज नॉन एज फिजिक्स। हम लोग प्रकृति का अध्ययन इसीलिए करते हैं क्योंकि प्रकृति का अध्ययन करने में आनंद आता है। तो आप जो भी चीज करें आनंद के साथ करें, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी के ऊपर एक मंत्र लिखा हुआ है, ऋग्वेद का है वो, विज्ञानम आनंदम ब्रह्मम। विज्ञान से आनंद की प्राप्ति होती है, और आनंद ही तो भगवान है। खुश रहना ही तो ईश्वर की प्राप्ति है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखें कि आपको क्या करने में अच्छा लग रहा है। किसी को मैथमेटिक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है, किसी को सोशल एक्टिविज्म अच्छा लगता है। मैं बता दूं, गौतम बुद्ध बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बट he dedicated his entire life for the humanities. Swami Vivekananda dedicated his entire life for the humanity. He died at the age of 39. At the age of 28, he delivered famous Chicago address. Youth is a fleeting phenomenon. We have infinite potentiality embedded in us. That has to be only harnessed. That has to be only manifested. उसका प्रकटीकरण करना है। आप अनमोल खजाने हैं, आपके पास इन्फिनाइट ऊर्जा है, उस ऊर्जा का प्रकटीकरण करना है। और जैसा मैंने बताया, विवेकानंद का वो लास्ट सेंटेंस याद रखिए, वीक यू थिंक वीकर यू विल बी, स्ट्रॉन्ग यू थिंक स्ट्रॉन्गर यू विल बी, व्हाटएवर यू थिंक दैट यू विल बी। और उसके साथ एक वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो फेमस अंग्रेजी के पोइट हुए हैं, वो बोला करते थे हमेशा कि ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लीजेंट, लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड, act in the living present, hearts within and God over it. ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस था कि lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time. So we have infinite potentiality inside us. We have to transform ourselves by utilizing all those infinite potentialities present in us. हमारे पास जो अनंत ऊर्जा है उसको यूज करें, और इस सब चीज को याद रखकर हम अपने जीवन को हम लोग सबलाइम बना सकते हैं, उत्कृष्ट बना सकते हैं, महामानवी बना सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। इनका एक और क्वेश्चन भी, रिक्वेस्ट ये थी कि विश्व में शांति और समृद्धि की वृद्धि करने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए? हाँ, शांति और समृद्धि, जैसे मैंने बताया कि एम्पैथी इज मदर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। हम समानुभूत होकर सोचें। विश्व में शांति अभी जो बिगड़ रही है, जैसे आप तालिबान की समस्या देख रहे हैं, आतंकवाद का समस्या देख रहे हैं, नेशन के बीच फाइट देख रहे हैं। जब एक नेशन ये सोचेगा कि दूसरा भी नेशन कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं, ऐसा अगर सोचे, तत्त्वमसि, दूसरा देश भी मेरे ही समान है, दूसरे देश का नागरिक भी मेरे नागरिक के ही समान है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव, ऐसा भाव से अगर सोचेगा तो विश्व में शांति अपने आप आएगा। और एक चीज और मैं जोड़ देता हूं कि जैसे हम लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, तो धर्मो रक्षति रक्षित, मतलब ये चीज, दो चीज इसमें आती है कि आज का अगर आप युग देखें तो गांधीयन एंड बुद्धिज्म फिलॉसफी, दैट इज philosophy of non-violence, that has though that is not completely irrelevant, but that is irrelevant. जैसे दुर्योधन के समान अगर व्यक्ति हो तो उससे निपटने के लिए थोड़ा सा ताकत का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका गांधी घोर विरोधी थे। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को
कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अब आप बताइए, रामधारी सिंह दिनकर बड़ा बढ़िया चीज लिखे हैं कि कृष्ण भगवान तो याचना लेकर गए थे दुर्योधन के पास कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन दुर्योधन बोला कि तुम्हें इंच भर भी जमीन नहीं देंगे अर्जुन को, तुम्हें जंगल में ही रहना है। अगर दुर्योधन जैसा व्यक्ति आए तो कृष्ण कहते हैं कि युद्धाय कृत निश्चय अर्जुन, देयर इज नो वे आउट बट टू एलिमिनेट दुर्योधन काइंड ऑफ पर्संस। तो ये जो दुर्योधन है, दुर्योधन हमारे मन में भी बहुत सारी खराब खराब भावनाएं पनप रही हैं, उसको मारना है। उसको पहले तो मन में जो खराबी है उसको दूर करना है, वो जो दुर्योधन मन में है उसको दूर करना है। फिर बाहर में भी जो चीज है तो उसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। विश्व में सभी अच्छे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे कामों की शुरुआत घर से होती है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले तो योग्य बनिए फिर कुछ करने का सोचिए। तो मेरा मानना है कि आप पहले ज्ञानी बनिए, ज्ञान जो सबसे बड़ा ताकत होता है। और हमारे देश में, मैं एक्चुअली समय बहुत कम था, मैं तो इसमें 1-2 घंटा और बोलने का मन बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में जो समस्या है, पहले तो अपने देश को मजबूत करें, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। और यहाँ जात पात का फीलिंग है। मैं बता देता हूं कि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग सह, चारों वर्णों का निर्माण हमने गुण और कर्म के आधार पर किया है। जन्मना जाए तो शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई नहीं है, जन्म से सभी शूद्र हैं। लेकिन बाद में ज्ञान और कर्म के आधार पर कोई ब्राह्मण बनता है। तो ब्राह्मण बनने के लिए 8 गुण होना चाहिए, जिसको कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण परिभाषित किए हैं। समो दमस्तप शोचम क्षांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। एक प्रश्न आ रहा है, इन टुडेज टाइम देयर इज सो मच एम्फेसिस ऑन बीइंग एंड डूइंग ओनली द प्रोडक्टिव, है ना। वो कट गया थोड़ा सा, उस पर आते हैं। तो हमारे समाज में ये जाति व्यवस्था को खत्म करने की बहुत जरूरत है। इसके आधार पर जो हो रहा है उसको भी दूर करना है। फिर रिलीजियस इश्यूज हैं उसको भी दूर करना है। तो सभी का जन्म है कि इम्पैथी। कोई नहीं, इसमें कोई किसी का गलती नहीं है। किसी जाति में जन्म ले लिया, किसी संप्रदाय में जन्म ले लिया, सब हमारे भाई हैं, बंधु हैं, ऐसा भाव से हम सोचेंगे। अगर कोई नहीं सोचता है उसको भी सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल से ये जो सेंस ऑफ एम्पैथी है, और ये जो कोई डिस्क्रिमिनेशन हम लोग आपस में सोचते हैं कि ये फलाना है, अरे कोई फलाना ढकाना नहीं है, सभी हमारे बंधु बांधव हैं। जो भी ऐसा सोचता है उसके ऊपर कड़ा से कड़ा मेरे ख्याल से उसके ऊपर शासन होना चाहिए। और इस तरह से समाज में बहुत अभूतपूर्व बदलाव आ सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भुवनेश शर्मा की तरफ से। व्हाट आर द अप्रोप्रिएट वेज टू इंक्रीज मोटिवेशन इन यंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू न्यू सर्कमस्टेंसेस? आई थिंक थोड़ा बहुत पहले क्वेश्चन के जैसा ही है ये। हाँ, मैंने वही चीज है बना। वो जो जैसे नए बच्चे होते हैं, जनरली न्यू चिल्ड्रन, न्यू जनरेशंस आर पासिंग थ्रू कॉग्निटिव फेजेस। पहले आता है कॉग्निटिव फेजेस, देन कम्स द फॉर्मेटिव स्टेजेस, and then comes the impressionable stages, and then comes the youthful stages, teenable stages जो कहते हैं। ये जो 4 अवस्था है शुरू वाला, these are very important thing। तो शुरू में तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसके पास जो है अच्छा कहानी बच्चे को सुनाया जाए। जैसे राणा प्रताप का कहानी सुनाया जाए, गौतम बुद्ध की कहानी सुनाई जाए, विवेकानंद की कहानी सुनाया जाए, राम और कृष्ण की कहानी सुनाई जाए, है ना। जो भी एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी सुनाया जाए। कभी कभी क्या होता है कि कहानी से हमें अद्भुत प्रेरणा मिलती है। अच्छे लोगों की कहानी मन में कुछ कर गुजरने का एक बहुत बड़ा हम लोगों को ये देता है, लेसन देता है, पाठ पढ़ाता है। तो उसके बाद है कि हमें कभी कभी एकलव्य हमको बन जाना चाहिए, है ना। एकलव्य का कहानी हम लोग सभी जानते हैं कि ही डिड नॉट हैव डायरेक्ट टीचर। उनको कोई शिक्षक नहीं हुआ था, तो अपने आप वो प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन द्रोणाचार्य जी का एक फोटो बना लिए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे लोगों को, जिसके पास भी शिक्षक नहीं है, वो खुद पढ़ाई करना शुरू करें। और किताब बहुत बड़ा शिक्षक है, बहुत बड़ा शिक्षक हो जाता है। और मैं यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनसे आह्वान करना चाहूंगा, जैसा कि मैं अपने वक्तव्य में भी बताया था, कि नॉलेज
ये जो है ना, नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, और विद्या, नॉलेज इज द ओनली वेल्थ which when disseminated becomes twice then and there। विद्या ही ऐसा धन है, ज्ञान ही ऐसा धन है, जिस समय हम बांटते हैं वो दुगुना हो जाता है। जैसे 1000 रुपये हमारे पास है, किसी को अगर 500 रुपया दे दिए तो हमारे पास 500 ही बचा। अगर 1000 का हजारों दे दिए तो हमारे पास 0 बचा। लेकिन अगर 1000 रुपये का ज्ञान इक्विवेलेंट के टर्म्स में देखें तो अगर हमारे पास 1000 की इक्विवेलेंट ज्ञान है, अगर हम किसी को बांट दिए तो हमारे पास 2000 का ज्ञान तुरंत हो गया। तो ज्ञान जो है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी बेसिक ज्ञान है, आप जहां भी रहें अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाया करें। जैसे ही पढ़ाएंगे आप, आपका ज्ञान दुगुना हो जाएगा। और जब आप किसी को पढ़ाते हैं सेल्फलेस होकर, और एक चीज मैं बता रहा हूं कि ज्ञान जो होता है, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, उसमें पैसे को बहुत महत्व ना दें। मैं हमेशा सभी से कहता हूं कि मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेंस, लेकिन लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए उसकी, क्योंकि अगर लक्ष्मण रेखा से ऊपर कोई मनी पैसा कमाना चाहता है तो वो डेंजरस है। इस खास करके ज्ञान के क्षेत्र में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी कॉन्फ्रेंस आयोजित हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन फी 0 कर देना चाहिए। अगर प्रावधान है, व्यवस्था हो सकता है, पार्टिसिपेंट हमारे पास हजारों के हजार जुड़ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही फ्री होना चाहिए। इस पर सभी विद्वज्जनों को विचार करना होगा। जितने भी यहाँ प्रोफेसर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कल आज के स्टूडेंट्स कल प्रोफेसर बनेंगे। आज के युवा जो प्रोफेसर हैं वो कल के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर बनेंगे। कल के वो गवर्नर भी बन सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। तो उनको ये ध्यान में रखनी होगी, जहां भी जाएं रविंद्रनाथ टैगोर का वो चीज बार बार बोले, वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर द सोसाइटी इज नॉट डिवाइडेड बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ये जो नैरोनेस है, ये जो पैरोकियलिज्म है, ये जो संकीर्णता है, इस भाव से ऊपर आना पड़ेगा, तभी हम किसी युद्ध को सुधार पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन जी जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर लाल जी की तरफ से। जो क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं तो या तो हम उनको जितना हो सके भी आंसर करेंगे, बाकी फिर आप कांटेक्ट लेकर फिर उनके आंसर को पर्सनल ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मनोहर लाल जी की तरफ से है वो है, शिक्षा विभाग में कथनी और करनी के अंतर को कैसे कम कर सकते हैं? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो कथनी और करनी, जो कि मैं अपने संभाषण में भी मेरे ख्याल से बहुत आंसर तो मैं उस समय भी दे दिया हूँ मेरा जो था कि देयर शुड नॉट बी एनी देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन वर्ड्स एंड डीड्स, देयर शुड नॉट बी एनी डिसहार्मोनी बिटवीन वर्ड्स एंड डीड्स। कथनी और करनी में मेल होनी ही चाहिए। जैसे मैंने एक श्लोक पढ़ के सुनाया था कि कृष्णा क्या कह रहे हैं कि यदि ही हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंत्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। कि हे अर्जुन, मुझे कोई भी काम बहुत सावधानी और सतर्कता से करना पड़ता है, क्योंकि कदाचित अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में अशांति, अराजकता का माहौल छा जाएगा, क्योंकि सभी ओर से सभी मानव मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं। एक लीडरशिप बताया गया है कि कथनी और करनी में मेल नहीं रहने से आजकल क्या हो रहा है। मैं बहुत चीज बोल नहीं सकता हूं यहां से, ये भी हमारी एक लिमिटेशंस है। मैं संविधान के बारे में अगर कुछ बोलूं तो लोग बोलेंगे संविधान। आप हैरानी हो गई आपको कि संविधान में एक आर्टिकल ऐसा है जहां की एक विचारधारा को पढ़ाने का आदेश है, दूसरे विचारधारा को पढ़ाने का आदेश नहीं है। और जिस विचारधारा को पढ़ाने का आदेश नहीं है, वो विचारधारा जो मैं अभी बता रहा हूं, साइंस ऑफ एम्पैथी, ये जो यूनिवर्सल वैल्यू सिस्टम है, जो चीज आज मैंने बताया, इसको आप ऑफिशियली पढ़ा नहीं सकते। बचपन में हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे कहानी पढ़ते थे, सुनते थे, आज शिक्षा से गायब हो गया है। सभी को विचार करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूं कि मैं क्या बताऊं, बहुत चीज समझने वाली चीज है। जैसे हम डॉक्टर को चूज करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे रिलीजियन का डॉक्टर है कि नहीं, हमारे जाति का डॉक्टर है कि नहीं, हम देखते हैं कि सर्वोत्तम डॉक्टर कौन है। वैसे ही आप इस चीज से ऊपर उठ के जाइए। जब डॉक्टर खोजते हैं तो जो प्राण बचाए वो डॉक्टर। उसी ढंग से अगर हम इफ एंड बट करते रहे, अगर हम नैरोनेस होकर सोचते, संकीर्णता से सोचते रहे, तो भारतवर्ष बर्बाद हो जाएगा। मेरा सभी से आह्वान है कि जो भी नेता
समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। समाज, मैं बता देता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एडवर्सिटी इज बेटर देन प्रोस्पेरिटी। मैंने प्रूव कर दिया है अपने जिंदगी में, जिस जिंदगी में एडवर्सिटी नहीं है वो जिंदगी ही बेकार है। अगर आप किसी को पैसा देते रहिए, उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है, उसको संघर्ष करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सभी युवाओं को सामने आना पड़ेगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सब ह्यूमन बीइंग हैं। हमारा दोष क्या था, हम किस परिवार में जन्म लिए हैं, सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और इस भाव से आगे आए, समाज के सभी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। वी हैव इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी विद अस। और जब हम एक हो जाएंगे तो ये जो नेता हैं, ये नेता हम लोगों को बांट नहीं पाएंगे। कुछ अच्छे नेता भी बुरे नेताओं के चक्कर में गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाए। जी थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश मुमुक्षु की तरफ से, जो कह रहे हैं झाजी पर्यावरण, नदी, हिमालय, जंगल, गंगा समेत सभी नदियां उच्च हिमालय क्षेत्र में भोजपत्र का लगभग विनाश भारत में होने का क्या कारण आप समझते हैं, जबकि गंगा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने बताया था पहले कि जब आप अपने घर में शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका पड़ोसी आपके घर पर पत्थर फेंक रहा होता है तो आपको मजबूत दीवार बनाना पड़ेगा। बात वैसा ही कुछ है। मुमुक्षु जी का क्वेश्चन बहुत जायज है, और बल्कि मैं बहुत बार ये सोचता हूं कि नदियों को अविरल बहने दे दिया जाए। मैं इस पर भी 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूं। नदियों पर कोई बांध नहीं बनाया जाए, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन नहीं। ज्ञान आप इकट्ठा कीजिए, लेकिन नदियों को अविरल बहने दिया जाए। कोई भी माइनिंग नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा हरिद्वार में एक अग्रवाल साहब आईआईटी के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, 133 दिन तक उन्होंने फास्ट करते करते अपना जान दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि आपका उधर चाइना बहुत बड़ा शत्रु बन के बैठा है। अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे तो चाइना हमारे देश का, जब जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के समय में, आपको याद होगा चाइना हमारा कितना 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैप्चर कर लिया, क्योंकि हमारे पास रोड की सुविधा नहीं थी। तो मुमुक्षु साहब का क्वेश्चन जायज है, लेकिन चाइना जैसा अगर पड़ोसी हो, पाकिस्तान जैसा अगर पड़ोसी हो, तो हमें उस डायरेक्शन में भी एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। मुमुक्षु साहब को मैं पहले से भी जानता हूं। ही इज ए ग्रेट स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन फ्रॉम विद इन, ही इज ए ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट। लेकिन मेरे जवाब को मुझे लग रहा है वो समझ रहे होंगे कि पड़ोसी बार बार चाहता है कि हम इंडिया को कैप्चर कर लें। अगर हम नहीं रोड बनाएंगे तो चाइना रोड बनाते बनाते अंदर घुस जा रहा है। तो इस बारे में मुमुक्षु साहब को सोचना चाहिए भीतर से कि क्या किया जाए इसी स्थिति में। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवानी चौहान जी की तरफ से। ये कह रही है, सर इन टुडेज टाइम देयर इज सो मच एम्फेसिस on being and doing only the productive things, which gives little value to spiritual or moral education, and the youth is suffering from overstimulation due to exposure of technology. How do we balance this expectation of so-called productivity with human value system? एक्चुअली क्या है, इसको समझने के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले थे कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि तुम युद्ध भी करते चलो और मुझे स्मरण भी करते चलो। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इनका क्वेश्चन जो है कि बहुत सारे चीज करते करते स्पिरिचुअल वैल्यू को कैसे इम्बॉडी कर सके, है ना, एसिमिलेट कर सके, अपने आप में आत्मसात कैसे हो सके। तो कृष्णा सेज टू अर्जुन कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन तुम सभी समय में, हर एक समय में युद्ध भी करो। युद्ध मतलब क्या, बुराइयों का नाश करना ही युद्ध है। अगर हम सही रूप में समझें, जो भी बुराई है हमारे में, काम क्रोध लोभ रूपी जो भी बुराई है, उससे फाइट करते चलो और मुझे याद भी करते चलो। वैसे ही मैं बता देता हूं, मैं तो भगवान बचपन में बकरी चराने के लिए जाता था ना, तो मैथमेटिक्स का दोहा याद करता था। और आज इस्कॉन टेम्पल में बताते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मंत्र का जाप जो है हम लोग सब काम करते हुए कर सकते हैं। तो अच्छा, दूसरा क्या है, जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, मैंने एक शुरू में बताया होगा कि मेरा हॉबी है
कि मैं जो भी साइंटिफिक एंड टेक्निकल टॉपिक पढ़ाता हूं, सभी में स्पिरिचुअलिटी डिकोड करता हूं। मैंने एक पेपर के बारे में भी बताया, जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा एक पेपर है जिसका कि नाम भी मैंने बताया था कि है ना, ट्रांसफॉर्मिंग इंजीनियरिंग एजुकेशन, exploiting inveterate symbiosis between science and spirituality। तो मुझे मेरा कहना है कि इसके लिए अलग से कोई चीज नहीं करना है। कबीर ने तो कह ही दिया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। ये जो लव एंड कंपैशन है, ये जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, ये जो ईर्ष्या द्वेष है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। मन में विचार कर लें कि हमारे जो दोस्त हैं सब अपने हैं, विश्व के सभी लोग मेरे भाई बांधव हैं। इसलिए विवेकानंद ने जब शिकागो में एड्रेस दिया तो उन्होंने क्या, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यही 2 शब्द से अमेरिकन को लगा कि ये तो हमारे देश का ही कोई युवक है। उसके बाद मैंने एकाएक उनके मन में लव और कंपैशन छा गया, बहुत देर तक ताली बजती रही। तो ये जो लव एंड कंपैशन का फीलिंग है, यही है आध्यात्मिकता, यही है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का मूल। बस लव, लव एंड लव। जो विवेकानंद कहते थे, लव नेवर फेल्स माय सन, टुडे और टुमारो आफ्टर लव विल कंकर। ये जो लव एंड कंपैशन है, ये इसके लिए हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लिए हैं, कुछ बोलना है इसलिए। अदरवाइज हमारे जिंदगी में हम विज्ञान पढ़ें, गणित पढ़ें, सब सपोर्टिव है हमारे जीवन के लिए, लेकिन साथ में अच्छा ह्यूमन बीइंग बने रहे। अच्छा ह्यूमन बीइंग बने रहने के लिए लव एंड सिंपैथी, कोई आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, आपस में अंतर ना करें, सब अपने हैं, कोई पराया तो है ही नहीं। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेताम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, वह पराया है, ऐसा तो नीच व्यक्ति करते हैं, अधमी व्यक्ति करते हैं। जो महान व्यक्ति हैं उसके लिए तो दुनिया ही एक समान है। बस इतना भाव के साथ आप जो भी चीज पढ़ाई करते हैं पढ़ते रहें, और आप यूं ही अगर अध्ययन करते रहे, देखिए एक दिन दुनिया बदल जाएगा, मेरा मानना है। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन शांति भूषण जी की तरफ से है, व्हाट आर द नेगेटिव रिपरकशंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन? हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन का नेगेटिव रिपरकशंस क्या है? एक्चुअली क्या है कि कहते हैं कि एवरीथिंग हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स, है ना। और ऑनलाइन भी आजकल जो है, ऑनलाइन एजुकेशन जब से लाइट में आया है, मैं बता दूं, we came to know many things which otherwise we would have been devoid of all these technical aspect। अगर नहीं आता कोरोना तो बहुत चीज हम लोग जान नहीं पाते, कैसे ऑनलाइन क्लास लेते हैं। जब आया था मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे, कैसे गूगल क्लास बनाएंगे, कैसे बच्चे का टेस्ट लेंगे। लेकिन अद्भुत, कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वी हैव टू टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली, वी हैव नॉट टू सी एनीथिंग इन अ नेगेटिव सेंस। जैसे कहते हैं ना कि ग्लास आधा भरा हुआ है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं आधा खाली है ना। तो मोदी जी ने एक नया टर्मिनोलॉजी दिया कि ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है और आधा भी खाली नहीं है, बल्कि वो भी हवा से भरा हुआ है। तो वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वी हैव टू बी पॉजिटिव, we have not to see anything in a negative sense। there is no negative impact of this online education। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे मैंने न्यूटन के बारे में बताया कि ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम आया एंड न्यूटन सॉल्व दैट प्रॉब्लम व्हिच वाज नॉट सॉल्व्ड बाय बर्नौली। तो अगर ये प्रॉब्लम नहीं आता तो न्यूटन उसको सॉल्व नहीं करता। और मैं बता दूं, ये जो ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम था, उससे एक नए ब्रांच ऑफ कंट्रोल का जन्म हुआ, दैट इज नॉन एज ऑप्टिमल कंट्रोल। ऑप्टिमल कंट्रोल बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हमारा विषय रहा है, उसी पर मेरा रिसर्च हुआ है। इसीलिए ऑनलाइन का कुछ निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ा है। अभी आप लोग हजारों लोग, सैकड़ों लोग सुन रहे हैं, मैं घर में बैठा हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पॉजिटिवली लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सभी के मानसिक विकार को दूर कर दें, सभी भाई बंधु के तरह दुनिया में रहें। दुनिया से आतंकवाद मिट जाएगा, नहीं मिटेगा तो सब मिलके उस मच्छर को मार देना है, खत्म कर देना है, सब शांति छा जाएगा सभी ओर से। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश सालवे जी की तरफ से, सर जी, अनेक भारतीय लोगों ने राम, शिवाजी, नेताजी, बाबा साहेब, गांधी जी, सावरकर, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई, इन्हें अपने अपने समुदायों में बांट दिया है।
इस पर क्या उपाय है? बस उसका भी उत्तर वही है, वसुधैव कुटुंबकम। अब हम, और वो भी जो दिनकर ने बताया था, है ना, कि दोषी केवल नहीं व्याध तटस्थों के भी लिखेंगे इतिहास, है ना। तो हमें तटस्थ नहीं रहना है, खास करके मुझे जो सुन रहे हैं, है ना, वो चीज, वो सभी को ये चीज बता दें कि कुछ ग्रेट पर्सन्स जो हुए थे, है ना, वो ग्रेट थे बिकॉज दे डिड ग्रेट वर्क। हैंडसम इज वन, हैंडसम वुड डज। आप भी कुछ करिए, पहले पहले तो कहते हैं ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। मैं बताऊं आपको, हमारे कॉलेज में, मेरा पहले कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी बन गया है, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता था, उससे पहले दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता था। तो मैं एक बार देखा, ऐसे 20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ये 2001 सब की बात है। दो स्टाफ आपस में, एक तो सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में बोल रहे थे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू जी के पक्ष में बोल रहे थे। तो दोनों लड़ रहे थे खूब कि सुभाष जी बहुत ज्ञानी थे, तो वो बोल रहा था नहीं, नेहरू जी बहुत ज्ञानी थे। सुभाष जी बहुत देशभक्त थे, तो वो बोल रहा था नेहरू जी बहुत बड़े देशभक्त थे। तो मैं वहां बैठा हुआ था, मैं बताया, भाई तुम कितना पास हो, कितना एजुकेशन है तुम्हारा? तो वो दोनों बताया कि हम मैट्रिक पास हैं। हम बोले भाई पहले तो तुम ग्रेजुएशन करो। वो दोनों कम से कम ग्रेजुएशन थे, तब ना उसको तुम आंकोगे कि वो ज्ञानी थे कि नहीं, देशभक्त थे कि नहीं, तब वो समझा भाव को। तो हम लोग भी सभी का चर्चा करते हैं, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो हम ज्ञानी बने, जैसा मैंने बताया था कि ज्ञान ही सभी समस्याओं का समाधान करेगा। और इम्पैथी इज मदर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। बाबा साहब आम्बेडकर और वो लोग तो अवतरित हुए थे व्यक्ति, जो भी उस समय, महात्मा गांधी का भी बहुत विशेष गुण था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हर एक व्यक्ति, भगवत गीता में एक श्लोक में बताता हूं, सभी जो भी ये क्वेश्चन पूछे हैं उनको 333 याद रखना चाहिए। 3.33 चैप्टर 3 का 33वां श्लोक भगवत गीता का। वो कहते हैं श्री कृष्णा कि सौदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कि अर्जुन को वो बता रहे हैं कि अर्जुन, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी का आचरण गॉड गिफ्टेड आचरण होता है। वो कैसा बिहेव करता है, कैसा आचरण करता है, इसमें किसी का हट नहीं कुछ कर सकता है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हर एक व्यक्ति का कुछ लक्षण होता है, एक नेचुरल लक्षण अलग चीज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अटैच्ड हो जाते हैं किसी चीज से। अटैचमेंट के बारे में मैं बहुत बताया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुमाते संगो अस्त्व कर्मी। Let us not be attached either with politics, either with our family, either with our caste, either with our nation. मैं बार बार बोलता हूं कि एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म इज ऑल्सो वेरी डेंजरस थिंग। क्योंकि पाकिस्तानी भी पैट्रियट हैं, चाइनीज भी पैट्रियट हैं, इंडियन भी पैट्रियट हैं, और सबका पैट्रियोटिज्म तो अच्छा है, फिर तो लड़ाई होगा। इसीलिए हम दूसरे के मन में जाकर सोचने का प्रयास करें। आप घृणा द्वेष छोड़ दें, कोई दूसरे से विवाद ना करें और इस भाव को सब जगह फैलाएं। हम अटैच ना रहें। अटैचमेंट के कारण ये हो रहा है, जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेट नॉट द अटैचमेंट बी द कॉज ऑफ योर इनएक्शन। अगर हम बार बार महान व्यक्ति को भी बांटते रहेंगे कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो सब चीज नहीं करना है और एक दूसरे को समझाना है। मेरे ख्याल से बहुत हद तक समाज में बदलाव आएगा और ऐसे समाज होते आया है, चलते आया है, और हमें टॉलरेट करना पड़ेगा बहुत चीज को। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी एक्चुअली सर क्वेश्चंस कुछ आए जा रहे हैं, तो मैं, और टाइम भी हमारा काफी एंडिंग सेशन पे आ गया है, तो सर आप अपना अगर ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट आईडी बता देंगे तो मैं सभी को कह दूंगा कि अपनी क्वेरीज को आपको रिवर्ट कर ले डायरेक्ट। जी जी, ये है आपका जी सर। झा SK271। जैसे SK झा मेरा नाम है तो उल्टा लिख दीजिएगा, झा जी सर। JHASK271 जी सर। @gmail.com। ठीक है सर, मैं सर चैट बॉक्स में ईमेल आईडी डाली है, आप जी। एक बार देख लीजिए सही लिखा है। हाँ, और झा SK270, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जी जो भी पार्टिसिपेंट्स की क्यूरीज अभी आंसर नहीं कर पाए इस सेशन के लिए, प्लीज आप सर को मेल कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड आपके क्यूरीज को सर जितना हो सकेगा क्विकली आंसर कर देंगे। ठीक है सर। जी। अब मैं सर इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए अपनी तरफ से वोट ऑफ थैंक्स देता हूँ एक बार। थैंक यू सर फॉर अ सच वंडरफुल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन।
Universal values, universal human values play an important role for the quintessential educator. And your lecture was indeed, like in your lecture, you have visited strongly on the aspect by twining the principle of empathy with human values. And particularly, I am from being science background, and I was personally enlightened the way you have connected the sciences with human values in a very simplified way. And more importantly, the stokas, anecdotes, quotes, and doas were appropriately said and appropriately quoted also. And again, I thank you for this interesting session, sir. And keep visiting us again and again. Thank you very much, Dr. S. Shankar Subramaniam. Thank you very much. And I really enjoyed, and I thank all of you from the bottom of my heart. Let this, torch of knowledge, always continue by all these conference and workshop, etc. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Okay. Thank you. Ma'am, if you wish to say something. Vinita, ma'am. Yeah, thank you, sir. It really enlightened us and showed a new side, how you connected science with. So it was really very, very enlightening. Thank you, madam. Thank you. Now there's a small announcement for everyone that today we will be sharing a link with all the participants. This is please go through the link. You have to listen to the recorded lecture, and today's quiz will be based on all the 3 lectures and plus the recorded session that we will be sharing with you along with the link. So please go through. You have to listen to this and answer the questions. The quiz will be linked to the session. So I am leaving, Dr. S. Shankar. Thank you very much, all. Anna. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So you will be getting a feedback to be filled. There will be a quiz. Quiz will be based on all the 3 lectures plus a recorded session